the teachers from the Thakur College, and my dear friends from the Ismail Yusuf College. Our today's session is on data analysis tools used for the hypothesis testing. And the very session will be taken by Dr. Nishikant Jha. He is very well known to all of us, all the members, they are very known to him. But it is our practice that we have to introduce the resource person. Since every day, right from the beginning of this workshop, Dr. Nishikant Jha was introducing all the resource person. Now, since today he himself is the resource person, so it is my turn to introduce him. Dr. Nishikant Jha is MCom in accountancy. He is a PhD in commerce. He is a ICWA. He is a doctorate of literature, DLIT. He is a MBA and many other such courses. Okay, PG courses are to his credit. Presently, he is a faculty in accounting at Thakur Degree College of Arts, Science and Commerce, Kandivali, Mumbai. He is also the Board of Studies member of BAP, the Bachelor of Accounting and Finance, and he is also the BOS member to the many colleges of SRTM universities. Okay, he is a PhD guide in University of Mumbai. He is a life member of Indian Accounting Association. He is a life member of Indian Commerce Association. He is a life member of Indian Economic Association. And presently, he is the General Secretary of Indian Accounting Association, Thane branch. To his credit, many articles are there. Many articles he has written, many conferences to which he remain as a resource person, then the chairman of the session. And in short, I would like to call him that is the biggest qualification which a person earn by the passage of time. That is, he is the management and the marketing guru. इससे अच्छा जो मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग गुरु अपने जो मुंबई में जितने भी जो टीचर्स है उसमें शायद आपको ये नहीं मिलेगा। अब कोई बोलेगे कि ये सर ने तारीफ की है या एकदम मखमल में लपेट में वो कुछ मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द रियलिटी। और ये ऐसी क्वालिफिकेशंस है, ये ऐसे जो मेडल्स है जो एक इंसान जो है बाय पासेज ऑफ टाइम व्हेन ही इंटरैक्ट विद द मेनी पीपल ही लर्न। ही इज वेरी रिच इन द सॉफ्ट स्किल एंड शायद जो कुछ स्किल्स निशिकांत झा के अंदर है वो मेरे अंदर भी नहीं है। हाँ निशिकांत, जो कुछ स्किल्स तुम्हारे अंदर है वो कुछ स्किल्स मेरे अंदर भी नहीं है। मैं लोगों को एकदम सामने सामने लताड़ देता हूँ, तुम लोगों को लताड़ते नहीं हो, तुम प्यार से बोलते हो, बराबर कि नहीं? मेरे अंदर वो प्यार वाला फॉर्मूला नहीं है, बट दैट यू डू वेरी इफेक्टिवली। देन द निशिकांत हैज टू हैव टू हिज क्रेडिट the many awards to his credit, the many medals to his credit, and मेरा और निशिकांत का जो एसोसिएशन है, अच्छा निशिकांत कौन से साल से है? मैं जरा रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 2003 ऑनवर्ड सर। अच्छा 2003। अच्छा, इसने कुलदीप को भी पीछे छोड़ दिया और एक साल का क्रेडिट ले लिया। देखो मैंने कहा है कि ही इज द मैनेजमेंट एंड द मार्केटिंग गुरु, बराबर कि नहीं? तो मैंने कुलदीप का कल इंट्रोडक्शन किया था कि आई नो हिम सिंस 2004, so Nishikant told that he knows me since 2003. Yes, but शायद मुझे इतना मतलब मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं जो रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ निशिकांत को और जो मेरा जर्नी है since 2008, but the prior to that we might have met at some places, but since it is on record, it is being confirmed by the Nishikant Jha, so we have to agree. And I believe sir, I have your letter issued to me. You were there as a member board of studies. Yes, sir. अरे माता, and I was working under you as a subcommittee member. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, very good, very good, very good. So the today's session, I believe that it is the very important for
the research scholar that under which situation the what tools is to be applied and whether the questionnaire is the full proof that it accepts the whatever tools we recommend for the data analysis and purpose. So I believe that our today's the 2 hours journey will be a very royal journey, and Nishikant will take us to the various the stages of the research tools which is available at his disposal, and he will very nicely, briefly, he will orient our today's the resource person from the Ismail Yusuf College and from the Thakur College and the members of the Indian Accounting Association. So by giving the thanks to my all the participants and the management committee of the Indian Accounting Association Thane branch, including the Kuldeep, is our treasurer, and the some resource person also, they are live today. So with their permission, I ask Dr. Nishikant Jha to take the charge of today's session and orient our today's participant. Thank you. Nishi, take the Thank charge. you very much. Thank you very much, sir, for your lovely introduction. I'm really thanking to God and everyone that I got such a lovely introduction by sir. And I was also not knowing about me such briefly. My dear participants, today we are the topic which has been given to me is I have sub-classified into two parts. One part we are going to see what is research, and the other part which tools to be applied for testing the hypothesis. Honestly speaking, whatever I'm going to deliver in my sessions today, it is my own experience, what I have learned. So disclaimer, if something, because my journey in commerce also, I'm basically from science background, so it's not 100% commerce. But yes, as far as research journey states, since 2002 I'm working. Since then I have enrolled. 2007 I have got my PhD, and in very early stage I started, guiding the student for PhD and MPhil. So whatever the problem I have faced as student of research, as a guide of research, I'm going to discuss that aspect. So again, I will request it will be a bit of participative kind of session as and when it is required. And I expect your answers only and only through chat box till the session gets over. If few tools I'm a bit not able to finish, definitely, it requires a huge session for testing hypothesis. But if something is miss out, we will definitely take care in subsequent session as well. But I'm sure I'm going to cover it up. As far as research concerned, for me, I'm breaking the word in two parts: research, searching again and again. And since day first I'm attending all the session, they were talking about so many tools. Honestly speaking, I know only two tools about testing the hypothesis or analyzing the data, and one is Excel and second is SPSS. Why I'm preferring Excel more? Because majority of my students data is from undergraduate student, and honestly speaking, teaching them SPSS will take again a huge amount of time. So I always prefer to guide them through Excel. And believe me, almost 80% thing which you can do in SPSS, you can do 80 to 90% things through Excel as well. And many things where SPSS fails, we use eViews. There are other tools of testing our hypothesis and analyzing data. Uh, as per your convenient, as per your objective, as per your research, you can take those tools. But I'm going to teach you very basic, in very basic layman language. Please forgive me if somewhere if I'm making any error or mistake. I'm really sorry for that. But those critical comments, kindly pass it on to me after the session. So research, as I stated, it is divided into two words: research. That means it is never-ending story. If the searching ends, again it will be research. I'll give you the best example of communication problem. Since beginning, it has been a problem for every one of us.
and we use the animal, we use the birds. Then we discovered postal, telegram, telephone, pager, mobile, and things are moving. So still, research is not end. Mobile also so many modification we are finding. So as life will be there, as human being will be there, research will be there forever. So keep in mind, research is there forever. But honestly speaking, when we see in the textbook or reference book, the research is taught to us or given in front of us in this kind of diagram, which makes everything very critical for any science, commerce, arts, or technical person. Difficult to understand. So for me, research to be explained with a very effective example. If you know how to make movie, what things are required, I believe this complicity will go and you can understand research very effectively. So what all be required for making a movie? Can you answer through chat box? What all things are required to make movie? Any of you? I want your quick response. Please don't waste your time. Story, right, Pooja ma'am, thank you. Finance, Kavita ma'am, yes, you are a chartered accountant. Uma ma'am, story, direction, Swati ma'am, yes, very correct. And idea, actor, very correct. Artist, very correct. Location, yes. Casting, very correct. Direction, perfectly all right. Choreographers, planning, advertising, superb. So if you are knowing this effectively, then what is the problem of research? Research is simple. Just compare now. The things which is required for making movie, same thing is there for research also. Okay. The idea, the objective which we take, the title of movie, the script is to be considered as review of literature. Producers is known as research guide, research supervisor. So as you cannot blame producer if the movie is flop. You have to blame the director. Am I right? So you consider yourself being MPhil student, being PhD student, or being undergraduate student if you are doing research as the director of movie. Entire things is based on director, and you have all the rights. Honestly speaking, being the director, you have the rights to change producer also. Being the director, you have a rights to change your title also. Being the director, you have a rights to change your cast anytime, any moment. Being the director, you can have a rights to uh, change anything and everything. Honestly speaking, there is no problem at all. Okay. I hope this example is going hand on hand. Again, I will expect your answer through chat box only. So amenities, location, marketing. See, when we talk about marketing, honestly speaking, when we do the paper presentation before putting our final thesis, it is nothing but marketing. Similarly, movie when it is releasing, before releasing, they are putting their songs, they are putting poster launch, they are putting their trailers. So this is all known to us. And if we are knowing how to make movie, easily we can make, and we can understand how to do the research. And believe me, as the work of censor board, right? Finally, they are the final authorities to uh, reject or accept the title. Similarly, here RRC and DRC committee decide whether to continue with the same title or you required some changes, etc., etc. And at the end, when the movie is
release, that it is two things. Either the movie will be hit or it will be flop. Once it is flop, do you think that director, that producer, those actors, they are going to stop making movie? Absolutely not. Many movie you must have seen by Amitabh Bachchan also it got flop, or Amir Khan also, he was an actor and that movie got flop. So we should carry on. In some, you must have seen ISRO also got, during Chandrayaan, they, got not 100% accuracy. It went to only 98%. Still, the research is on. So research is continuous activity. So this example is the perfect example as far as my understanding goes. What is research and how? Here few things we have to analyze and you have to understand in very effective way. One is actor, which I have considered as variables. You must have seen in one movie, let's say example of Ranveer Singh. In one movie, Sanjay Leela Bhansali is making him hero. In subsequent movie, he is making him villain, and likewise. So similarly, in one research, you keep one variable as independent. In some example or some research, you can take those independent variable as dependent. So it's purely your purview. You are the director. You are the director of entire movie. So you carry on the show, the entire casting. And one thing also I would like to ask, any movie, a good movie, what time limit do you think is required to make a good effective movie which has a long lasting impact in the minds of people, and it has created history for giving as far as the hit record is concerned? 30 days is wrong answer, man. The good movie, I think it required not less than 3 to 4 years. Yes, yes, yes. Similarly, UGC has given you time limit of at least 3 years for PhD. Okay. So I feel, I mean, this is the best example to understand movie making and doing the research. So once I teach and once you will understand research by way of making movie, I feel you will enjoy doing research. You will really enjoy doing research, and you'll always consider yourself as a director of movie, and you will put your efforts. You will before taking variables, you'll work hard. Before taking songs, you'll, preparing paper, presenting paper, you work hard. Before taking the location, you'll work hard, etc., etc. And as you have stated and you have seen, first two component is integral and very important. Your title, which is very, very important, and second, the review of literature. I think may it be Arvind sir, may it be Kathy ma'am, may it be any resource person, they have emphasized a lot as far as review of literature is concerned. That is very, very important for making movie. And one thing also I would like to make you very clear, you have to do the research, the things which is variable in nature. You cannot do the research which is fixed or constant or context. Okay. So it is very important. Once you have seen, any particular title, you'll find in entire title, there is a scope of variable. That part you have to do the research. Say, for example, none of us we are doing research that sunset will be there in west and sun will rise in east. Everybody knows that. But research is going on. The variability of temperature. You will find in monsoon the temperature is different. In summer season temperature is different, and there also we take average, not 1 day ka or 1 hour ka temperature. So these all things are very, very important to continue our work of understanding research. So my entire session will be divided in two aspects. First, we understand the research, their variabilities, their aspect, and then we will apply the tools. Then only it will be very, very,
connective with the entire presentation. So as I stated to you all, variability can be divided into univariate, or it will be bivariate, or it will be multivariate. And the second thing, when we talk about variables, majority of us, we know only there are two types of variable which has majority of the textbook. One is dependent and one is independent. No, it's not like that. Of course, and many a times my students get confused how to understand the dependent and independent. So the very basic example, let us take the example age and height. So as the age is increasing, height of a person is definitely going to increase. So height is always dependent on age. I cannot say that age will go up and I can reduce my height. So age is always be considered as independent variable, whereas the height will be considered as dependent variable. Okay. Many a times we have seen today's COVID, it is because of Indian problem or foreign problems. The problem which we are facing, it is because of external variable, not the internal variable. Once it came to India, then there are many carrier of COVID. So then again, it became internal problem. So there are internal variable, there are external variable. Now, before going further, like I have given you the example of, age and height. Similarly, we can take the sales and profit also in the terms of commerce and finance and accounting. So if the sales will increase, definitely profit will increase. Sales will increase, profit will increase. So definitely we can say the profit is dependent on sales. The profit is always dependent on sales. I cannot say that sales is increasing and profit will decrease forever. No, it's not like that. Majority of the time you'll find that profit is dependent on sales. So sales will be considered as independent variable, whereas profit will be considered as dependent variable, because profit is dependent on sales. So you have seen the advertisement of Complan, whereby your Cadbury is claiming that Complan is the secret of my height, or I'm a Complan boy, or I'm a Complan girl. Can you tell me how they can put this kind of claiming? How they can put the claim that, okay, Complan, if you drink Complan, then only the height will increase? What kind of testing, what kind of research they must have done it before putting such kind of claim? So, of course, I want the answer. What other factor will impact height beyond age? What other things do you feel is required as far as height is concerned? Participant, I want your answer. Height के लिए क्या क्या? Diet, absolutely right. Exercise, absolutely right. Perfect. और क्या? Environment, yes, ma'am. Perfect. Habits, okay. Heredity, yes. Genetic, absolutely right. So when these many factor is affecting, then how can that Cadbury is claiming, okay, if you drink Complan, your height will increase? So what they must have done, yes, very correct. I'm very happy today. All the participants are very much participating for entire session. I'm thankful to you all. I hope you must be enjoying the session and learning effectively. Thank you for your support. Now I'll make you understand about the control variable. So when they have done the research, what they must have done, they must have experimented the things in twins. Okay, आप gender भूल गए. Gender also is play very vital role as far as height concerned. You must have seen most of the the average height of female is lower than the average height of male. So in that case, what they have done, they must have conducted the research in twins. Okay, twins also with the same gender.
And in that twins, agar aapne twins liya, so what you are controlling? You are controlling their genetic, you are controlling their environment, you are controlling their atmosphere. And usme kya kiya rahega? In one kid, they must have applied Complan, and other kid, they have not applied Complan. And then subsequently with pair t-test, they have seen their growth of height. And finally, they have proved them and then concluded, yes, because of Complan, the height is increasing to certain extent, and they have put this kind of advertisement. So those are known as controlled variable. Those are known as. So what is problem we do? We have always ignoring the control variable. We always ignore. Actually, just now I stated to you all, profit is dependent on sales. No, majority of other factor also depends. If the cost control will not be there, if the sales promotion is not be there, if the competitors are not, or if the government intervention take place, so there are many others. So you have to make other variable in control mode, and then only you can, uh, you can run your testing, you can apply your particular tools. But what we do, by taking these two independent and dependent, we started continuing the research. We have to control. That is very important. Then only the accuracy of outcome of your result will be perfect. Then just now I've stated to you all that profit is dependent on sales. Now I'm taking another example, which is salesman's commission. Now, which is dependent on profit. Yes or no? So now commission will increase only when the profit will increase. Now this is profit, this is commission. So now the profit will become independent variable and salesman commission will become dependent variable. So you will find majority of many or such time, there is one particular variable which is having the nature of dependent variable also or independent variable also. So if both the other aspect is non-metric, then they are known as mediator, and both the other aspects are metric, then it will be known as moderator. So actually there are not only two variables, there are other variables also. Of course, independent, dependent is main. Then we have control variable, we have external variable, we have internal variable, we have mediator, we have moderator, etc. etc. Once we have understood the variable, then as I stated to you all, the variability will be of three types. They are univariate, bivariate, and multivariate. Now, how you can make out that anything is univariate? You'll find that entire objective, entire title, entire hypothesis, there is only one aspect which is varying. Rest all are constant or context. Say, for example, just now I'm asking the, satisfaction, I'm studying to study the satisfaction level of today's RM session. So study, ignore karo, today's RM cannot be, this is context. So here variable is what? Only one aspect, the satisfaction level of different students. Do you agree with me or not? So if I'm doing such kind of research, it will always be univariate. And जहां भी आपने टू लगाया ना, these all are univariate. And हम लोग उसमें 1000 टाइप के टूल्स लगाते हैं. That is absolutely wrong. Univariate में आप कुछ नहीं कर सकते. So I started with one thing. Okay, you can do the research only on variables, and then you have to understand the nature of variability. Okay, that is univariate, bivariate, and multivariate. In univariate, there will be only one variable, rest all will be context. उसके परफेक्ट्स में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसके बिहाफ में हम रिसर्च कर रहे हैं. वो वेरी नहीं करने वाला है, वेरी करने वाला एक ही चीज है. ओके, अभी सपोज मैंने यही अगर बोला कि कंपैरिजन ऑफ माय टुडेज लेक्चर विथ माय टैक्स लेक्चर, देन ऑफ कोर्स यहाँ का वेरिएबिलिटी डेटा अलग आएगा और टैक्स का डेटा अलग आएगा. देन देयर आर two component variables. Okay,
such cases you can take it as bivariate and like that. Word and majority of the time I found the researcher and the scholars are writing the word two. That means it is univariate. Agar compare hai, impact hai, effect hai, relationship hai, then only it has the nature of multi or bivariate. I hope things are very clear to you all. And beyond to it is multivariate. Okay. Before going to next slide, I will like to ask a very simple question. If there is, univariate, you cannot do much experiment. You cannot use your pair t-test. You cannot use chi-square. You cannot use f-test, etc. वो सारी चीजें भूल जानी. मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ आपको. And to understand this, first we need to understand the basic of statistics. जहां से हम लोगों ने FI/BCom में लर्निंग चालू करी थी स्टैटिस्टिक्स की, एंड दैट वाज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आई थिंक यहाँ जितने भी बंदे बैठे हैं उनको सबको पता रहेगा अबाउट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. और उसमें 3 टाइप के मीन हम लोग निकालते थे, 3 टाइप के एवरेजेस होते थे, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, यस. अभी इसमें जो मीन है दैट इज मैथमेटिकल एवरेज, मीडियन एंड मोड that is distance average, but तीनों measurement of central tendency ही है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि suppose I want to want the average height of a class student. Suppose you have entered in FI any division, and I'll ask you, can you tell me please what is the average height of your this class student? Which particular tools to be applied, whether mean or median or mode? Why mean? Why not mode? Mode is what number of number that will not give a proper this central tendency. Okay, I want the answer only in chat box, sir. Average, mean I'm getting median also, I'm getting mode also. Very correct. आप लोग भी देखो ये सारे answers भी आ रहे हैं. Okay, fine. The another task which I would like to give it to you. Can you get me the average age of that class student? Average age of that class student, the same class. मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, that was average height of a students, and the second question मैंने आपसे पूछा average age of the student. Yes, I was expecting the answer. Majority of me, they are giving mean. Okay, how we will do that? You will call all the students, you will take their heights, etc. Mean is wrong answer, ma'am. Okay, median is absolutely rubbish answer. Okay, fine. यही सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा. See, यही मैं आपको बोल रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और फिर उस पे टूल्स क्या अप्लाई करेंगे, यही बेसिक हमें नहीं पता है. And every one of us, we want to learn research. And many a times, I think sir will agree to me because we are there since long as a PhD, right? उनको बहुत बार आप हंसेंगे भी, but it is a fact, we have to tell you. उनको डॉक्टर लिखना है, नाम के आगे, इसके लिए PhD करना. This is not the objective. आपका PhD अगर social contribute नहीं कर रहा है, then it is of no use. Now, let us understand these two examples very effectively. And basic of how the data to be taken and what tools to be applied. Now, first question was regarding your height of the student. What I will do, I will not going to take all the students. I'm going to select the sample. Okay, जो भी this madam आया था,
take the average and definitely you'll have to apply mean over there. तो सीखा, टीचर ने बताया, this is the formula, summation of x upon summation of n, लगा दो, क्वेश्चन दिया, हमने ऐड किया और डिवाइड किया, आंसर आ गया. सिमिलरली हमें पूछा गया मोड के लिए या अगर फ्रीक्वेंसी है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एन, हम लिख लिए और हमने सॉल्व कर दिया. वी ऑल वर वेरी हैप्पी. बट this is not the way to understand statistics. When you will apply it for several times, then you will realize, okay, this was the fact, that is why we have applied. So here, over a period of more than 12 years in my research, or 17 years of research rather, you can say, since 2002, I'm doing the research work. So I understood, if the data is there, if the objective is there, then only I can think about this tool and then only I can apply this particular test. Before that, I cannot. So the first question was regarding the height. मैं क्या करूंगा, सैंपल उठा लूंगा और उसमें से जो बच्चों की हाइट होगी उनका एवरेज निकालूंगा थ्रू मीन ओनली. थ्रू मीन ओनली. Whereas जब मैं हाइट एज की बात करूंगा तो मैं मीन नहीं निकालूंगा, मैं मोड पे जाऊंगा. बिकॉज अगर F5 में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल हैव द सेम एज, 18 इयर्स 18 इयर्स 18 इयर्स 18. तो वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां पे मैं मीन कभी नहीं लगाऊंगा, वहां पे मैं मोड लगाऊंगा. बट थर्ड एग्जांपल अगर हमारे गले में आ गया कि टुडे स्टॉक प्राइस ऑफ TCS 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे गया, 200 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे आया. अभी अगर मैं इस पे मीन लगाऊंगा तो 0 डिवाइड बाय 4 इट विल गिव अस इनफाइनाइट आंसर. ऐसे केसेस में वी हैव टू अप्लाई मोड. सो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. व्हेन टू अप्लाई मीन, व्हेन टू अप्लाई मोड, व्हेन टू अप्लाई मीडियन. ये बहुत जरूरी होता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक हम डेटा अप्लाई नहीं कर सकते, टूल्स अप्लाई नहीं कर सकते. एंड उसको टेस्टिंग की बात तो उसके बाद आती है और फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन तो उसके आगे का स्टेप. ओके, यहां तक का आंसर परफेक्ट है. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 क्रिकेट प्लेयर एंड उनके आईपीएल के स्कोर देता हूं मैं आपको. एक था रोहित शर्मा, दूसरा था आपका योर हु इज द कैप्टन, आई वांट द आंसर. रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड ऋषभ पंत. ऋषभ पंत, आई गॉट द आंसर मैम, मेरे को पता चल गया. सो रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड ऋषभ पंत. सो इनके आईपीएल के स्कोर ऐसे थे. रोहित शर्मा का स्कोर 4 आईपीएल मैच में 35, 65, 45 and 55 था. विराट टोटल इज 200, एवरेज इज 50. विराट कोहली का 50 50 50 50 था, टोटल 200, एवरेज 50. ऋषभ पंत का 0 0 100 100, टोटल 200 एंड एवरेज इज 50. अभी इसमें से मुझे अगर किसी को सेलेक्ट करना है, मैं कैसे सेलेक्ट करूं? सपोज मुझे आईपीएल के लिए एक प्लेयर चाहिए, मुझे वनडे के लिए एक प्लेयर चाहिए, मुझे टेस्ट के लिए एक प्लेयर चाहिए. तो मैं कौन से प्लेयर को कौन से पर्टिकुलर गेम के लिए यूज करूंगा? आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. देयर आर 3 players, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत एंड विराट कोहली. रोहित Sharma's performance is 35, 65, 45, 55. Total 200, average 50. Virat Kohli 50, 50, 50. Total 200, average 50. Rishabh Pant 0, 0, 100, 100, 200 total and average is 50. सबका average 50 आ रहा है. Then तो ऐसे केसेस में हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जाता है. तो हमने क्या करना होता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन यूज करना होता है कि वो कितना वेरीज कर रहा है एवरेज से. मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, आप लोगों ने सब सीखा रहेगा. मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, जितने भी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन
है, सारी चीजें यूज होगी। अब मैं बताता हूँ, अगर मुझे टेस्ट का प्लेयर चाहिए तो मैं विराट कोहली के लूंगा। वाई? बिकॉज कंसिस्टेंसी। ओके। अगर मुझे वनडे चाहिए तो मुझे रोहित शर्मा को ट्राई करना पड़ेगा। एंड अगर मुझे आईपीएल का प्लेयर चाहिए तो मैं डेफिनेटली ऋषभ पंत को लूंगा। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। सो ये सारी चीजें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जाती है। तो उन केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको स्टैट्स को थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ता है और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन सीखना पड़ता है। और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इज गिविंग, बिकॉज दैट विल गिव अस द वेरिएशन फ्रॉम एवरेज। एवरेज से मेरा डेटा कहाँ वेरी कर रहा है, कितने पॉइंट पे, कितने वेरिएशन पे, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर बाइवेरिएट ऑलवेज कोरिलेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एज, हाइट, प्रॉफिट, सेल्स, दीप सर, मेरे को सिर्फ, मैं सारे की बहुत बेसिक चीजें जानता हूँ। गुरु लोग हमारे हैं, जैसे आपको अगर ईएफए सीएफए अच्छा है, नॉन पैरामेट्रिक पूनम को अच्छा आता है, रिग्रेशन में कुलदीप इज गुड। बेसिकली बेसिक्स में मैंने थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करा है, मैंने ज्यादा सेशंस लिया है। सो आई विल नॉट टीच यू डेप्थ ऑफ रिग्रेशन, बट बेसिक रिग्रेशन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर टुडे। एंड व्हेन इट इज मल्टीवेरिएट, then of course ANOVA, one way, two way, n way, Mankova, multiple regression, same path, and so many। ये सारे टेबल्स मैं आपको आज दे दूंगा कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मेट्रिक है तो, और इंडिपेंडेंट नॉन मैट्रिक है तो कौन सा टूल्स लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीजें मैंने आज सुबह आपको भेज दी है, वेल बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन। ओके, so can we proceed further? I think this part has been already considered. Measurement of central tendency, measurement of dispersion. So this we can go further. Correlation, regression, bivariate के लिए। अब आता है ऐसा, यही चीज अगर टेक्स्ट बुक में देखने जाते हैं तो ऐसा कॉम्प्लेक्स ढंग से सिखाता है कि जो पढ़ने का मूड होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब सोचो ये कौन सा डायरेक्शन है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ पैरामेट्रिक है, कहाँ नॉन पैरामेट्रिक, हम तो ये देख के ही परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं रिसर्च इज नॉट माय कप ऑफ टी। सी, मेरा बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव है, मैं रिसर्च को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैक्सिमम पीपल तक लेके जाना चाहता हूँ, दैट्स इट। और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च को जितना इजी से इजी अंडरस्टैंड, बिकॉज रिसर्च इज मस्ट। अगर कंट्री को डेवलप करना है, अगर आपकी एफिशिएंसी को डेवलप करना है, आपको रिसर्च आना ही चाहिए, आपके हर एक बच्चे को रिसर्च आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ऐसे सीखने जाएंगे तो हम तो कभी जिंदगी में पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक चीजों को सीख ही नहीं पाएंगे। तो मेरा फॉर्मूला बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है। सर ने भी कल बताया आपको, ख्याति मैम ने भी बताया, आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑफ माइंड इन मेजरमेंट और नॉमिनल, ऑर्डिनल, यू नो, रेशियो। ये सारी चीजें सर ने कल बहुत इफेक्टिवली समझाई है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। बिलीव मी, अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, राइट, सर ने कल बोला था कि यू नो, ईमेल से उनका एज नहीं पूछना चाहिए और मेल से आपको उनकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, बट आपको अगर एक्यूरेसी ऑफ आउटकम चाहिए तो पूछना ही पड़ेगा। सबसे इफेक्टिव रिजल्ट रेशियो डेटा पे आता है, सबसे, क्योंकि एक्चुअल डेटा आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि नॉन मैट्रिक डेटा पे आपको एवरेज रिजल्ट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। सपोज हमको प्रमोशन करना है हमारे एम्प्लॉइज का, और हमारे पास डेटा अवेलेबल है रेंज में 30,000 to 50,000 रेंज में, इतने एम्प्लॉइज हैं। ओके, और दूसरा जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको एग्जैक्टली पता है कि किसको 33,000 मिल रहा है, किसको 38,000 मिल रहा है, किसी को 45 आ रहा है, किसको 48 आ रहा है। अब बताओ दोनों में से कौन सा बेटर एम्प्लॉयर रहेगा टू इम्प्लीमेंट by taking the budgeting to go for increment next year? आपका आंसर होगा द
employer who has accurate data, who has scale data, who has metric data. So अभी ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि ये सारा चीज नॉन मैट्रिक, ऑफ कोर्स हम लोग बाद में जब भी उसको कोडिंग देते हैं वो नंबर्स में आ जाते हैं, बट ये सारा जितने भी डेटा है वो सारे नॉन मैट्रिक डेटा है, और जहां भी नॉन मैट्रिक डेटा रहेगा वहां पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आएगा, बेसिक्स में बता रहा हूँ, ओके। और जहां पे मैट्रिक डेटा आएगा वहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। मैट्रिक डेटा मतलब रेशियो डेटा, ओके। सो अभी नॉन मैट्रिक डेटा क्या होता है, बहुत बेसिक है सर। आप जब भी क्वेश्चनर भरते रहेंगे आपसे सबसे पहले पूछा जाता होगा नाम, योर नेम, एंड सेकंड आपको अगर जेंडर पूछा गया मेल एंड फीमेल, ये नॉन मैट्रिक आंसर है। बट अगर मुझसे एज पूछा गया, नॉट इन रेंज, एक्चुअली एज, ओके, या मेरा एक्चुअल इनकम पूछा गया, देन इट इज प्योरली मैट्रिक डेटा। डेटा जो नंबर्स में है, जिसपे हिस्टोग्राम बन सकता है। अगर मेल फीमेल का देखोगे, कल भी आपको कुलदीप सर, मेरा बहुत सारा काम कुलदीप सर और ख्याति सर ने कम कर दिया है बिकॉज ऑफ देयर सेशन, तो उसपे बार डायग्राम नहीं, उसपे सिर्फ बार डायग्राम बनेगा, हिस्टोग्राम कभी नहीं बनेगा। Whereas for metric data, or for you have to have, and you can get the histogram easily. Why? Because that is the data, actual data. And these are the type of data, as I have already stated, metric and non-metric. मैं आज बार-बार इस चीज को दोहराऊंगा, प्लीज आप ध्यान में रखना, ओके। योर जो मेट्रिक होता है वो बाइनरी फॉर्म में भी होगा, यस और नो में, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, लीकर स्केल में पूछ सकते हैं, राइट। वेयरएज जो मेट्रिक डेटा रहेगा, भी हमने आपको बताया, आई थिंक दिस इज ऑल वेरी क्रिस्टल क्लियर, PPT which has been circulated to you to understand metric and non-metric aspect. Okay, and then it's very important for us to understand the objective. Objective क्या है, मुझे करना क्या है, या मुझे मॉडल सेट करना है, फोरकास्ट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो ये टेस्ट लगेगा, राइट। टू रिलेशनशिप जानना है तो ये टेस्ट लगेगा, तो कंपेयर करना है हाइपोथेसिस टेस्ट, एंड मेजॉरिटी आई एम टेलिंग यू सोशल साइंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही होता है। बट वी डोंट नो, अगर डेटा ये है, जैसे अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको मुझे एवरेज हाइट बतानी थी, आप लोगों ने मीडियन मोड सारे आंसर दे दिए, या एवरेज एज पूछना था तो आप लोगों ने भी मीन मीडियन सब लिखते गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे डेटा क्या है, उसके ऊपर से मुझे टूल्स क्या लगाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्टिव डेटा क्लियर नहीं है, तो जैसे कुलदीप सर ने 1000 बार बोला, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अगर कंप्यूटर को दोगे कुछ ना कुछ तो पी वैल्यू आ ही जाता है, बट दोस पी वैल्यूज आर एब्सोल्युटली रबिश आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, राइट। दैट इज व्हाई वेयर वी आर लैकिंग। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा टेस्टिंग डिपेंड करता है डेटा कैसा है, मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है, ओके। और अभी आप देख रहे हैं कि अगर पैरामेट्रिक मैट्रिक डेटा रहेगा तो मैं पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करूंगा, ओके। और उसमें सब आता है, टी टेस्ट आता है, सी टेस्ट आता है, ओके, पेयर टी टेस्ट आता है, एंड नॉन मैट्रिक का किंग है काई स्क्वायर। हर एक में आप काई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको आपका आउटपुट दे दे। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो पैरामेट्रिक टेस्ट रहेंगे एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रहेंगे, ओके। सो मेट्रिक डेटा पे हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे और नॉन मेट्रिक डेटा पे हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। अगेन मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट है मेरा, और डेटा मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है। अगर इतना चीज आपको आता है कि वर्ल्ड का कोई भी टाइप का रिसर्च आप इजीली कर सकते, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ओके। देन you must have
seen that majority of the time we are writing in the hypothesis that there is a significant relationship or there is a significant impact. Why the word significant comes? Any answer? Why not other word? Okay. To understand this, two of my student, one student got 95.99 marks and other student got 96 marks. Okay. These are the percentage. When they came to me and I have asked them how much you have scored. Both of them, they have answered me 96%. They went, I have accepted. There is no difference. For me, there is no significant difference. There is no significant relation. There is no significant impact. But I announced, I am going to give you the prize of something only when you have got the highest marks. Then this 0.0001 has significant impact, and that those 96% score the prize, whereas 95.999% student is not going to get the prize. This is the importance of significance. That impact the entire things. So that is why it is very, very important for all of us that when we are writing significant word, we should understand the meaning of it. This is the univariate table, very simple table. If your data is non-matrix, okay, you cannot do anything. You just do the count and percentage और कुछ नहीं कर सकते. और एक ये jargon भी बहुत है कि हम लीकर लगाएंगे, हम ये करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा. क्या फर्क होने वाला है? मैं आपको सिंपल सा आंसर पूछता हूँ. Whether you have liked till now liking my answer, my lecture, kindly give me the answer in yes or no. Kindly get me the answer in yes or no. Please type few of you. Yes, 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 yes. Very good. Now I am asking. That means this is what I am asking you the answer. Thank you. This is what I am asking the answer in non-matrix form. मैंने कुछ number नहीं पूछा. The second I am asking the formation in metric. Okay. You just give me the marks out of 100. Yani 95, 98, 98, 7, 90, like whatever you feel. Get me the answer out of 100. पूजा मैम थैंक यू. अरे बाप रे सब 100 ही दे रहे. हाँ थैंक यू. सो अगर आप देखोगे बिटवीन दीज टू देयर इज नो डिफरेंस. सो वेदर डेटा इज मैट्रिक और नॉन मैट्रिक, अल्टीमेट रिजल्ट कम सेम. उसमें भी यस था, इसमें भी 99%, 95%. दिस इज आल्सो मेक. अब पूछता चलो लीकर स्केल लगा देता हूँ, हाईली सेटिस्फाइड टू हाईली डिससेटिस्फाइड, तो इट इज गोइंग टू चेंज माय एंड रिजल्ट? एब्सोल्युटली नॉट. करके देखिए आप, तो भी आपका एंड रिजल्ट सेम ही आने वाला है. तो हम लोग क्यों इस मिथ में जाते हैं, यहाँ पे लीकर स्केल लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे यस नो करेंगे तो ही आएगा. यार ऐसा नहीं है. आप किस पैशन से उस रिसर्च को करते हो, दैट मेक्स यू परफेक्ट. दैट मेक्स योर रिसर्च परफेक्ट. दैट feels you perfect. Yes, I have contributed something to the society. जब कोई जैसे when I started IT pay and those things has been accepted by cooperative banks and they are included in banking system, I felt very, very happy. हमको अच्छा लगा because मेरा research cooperative banks ने use किया. That's very important. That's very perfect. Understood? सो अगर मेट्रिक डेटा रहेगा, नॉन मेट्रिक रहेगा तो आप सिर्फ काउंट 10% कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. और मेट्रिक रहेगा तो यस यू कैन अप्लाई टी टेस्ट, यू कैन गेट देयर मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन दिस इज द बाइवेरिएट टेबल. आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट मैंने इधर कॉलम में लिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल रो में लिया है. ओके. अब ये देखो, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी मैट्रिक है तो ही हम रिग्रेशन लगा सकते हैं. दोनों मैट्रिक रहेगा तो ही रिग्रेशन लगेगा.
मैं अभी लगाने वाला हूं, ये काम आएगा। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मैट्रिक है और डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक है तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, टी टेस्ट और एफ टेस्ट हम दोनों यूज करने वाले हैं आज। ओके, एंड लाइकवाइज अगर दोनों नॉन मैट्रिक है तो आप क्रॉस टैप कर सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट मैट्रिक है और डिपेंडेंट नॉन मैट्रिक है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक और टेबल है फॉर मल्टीवेरिएट। सो दिस इज एंडलेस। इसका मैं 2 पार्ट में लिखा हूं, अनकोवा अनोवा, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है मैम। मैट्रिक मीन्स I'll take you again in the next Excel also. Metric means when we are asking the question in yes no form, how much you are, that means data is not there, actual data is not there. Whereas in metric you'll find actual data, your age, income, profit, expenditure, these are metric. Okay, gender, state, different banks, these are non metric. Okay, these are the steps. बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। आप ऑब्जेक्टिव देखो, फिर टेबल देखो, टेबल 1 में आपका फिट हो रहा है। मैंने आज तक जितने भी रिसर्च देखे हैं, मेरे को 98% रिसर्च यूनिवेरिएट दिखा है बॉस। ओके, एंड मेजॉरिटी ने नॉन मैट्रिक डेटा यूज किया है, फिर भी वो एफ टेस्ट लगाते हैं। आई डोंट नो कैसे लगाते हैं। जैसे अभी आपने आंसर बताया था ना कि एज के लिए भी हम लोग मीन लगाएंगे, नहीं जरूरत है, वहां मोड ही लगेगा। मीन लगा रहे मतलब आप गार्बेज इन गार्बेज आउट आएगा, की वैल्यू तो आएगा ही आएगा। सो ये आपको बताएगा हाउ यू हैव टू गो, हाउ यू हैव टू चेक, यू नो, हाउ यू कैन गेट द एक्सपर्ट ओपिनियन कि क्या डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट है। बहुत ही ल्यूसिड मैनर में मैंने आपको ये पीपीटी दिया है। ओके, and then this is the testing. This I will not waste my time. Now I'll go 1 hour directly for testing tools through Excel. I hope till here things are clear. Yes. अभी देखो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब देखो अभी आपको पता चल रहा होगा मैट्रिक नॉन मैट्रिक क्या है आपके स्क्रीन पे। सारा का सारा मैट्रिक और नॉन मैट्रिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ओके, तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, मेल फीमेल, आप यूजी और पीजी। ठीक है, अभी एज मैंने एक्चुअल डेटा पूछा है और मैंने इसको स्केल कर दिया है 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके पूछा है। सो 10 to 21, 20 to 30 इनकम एक्चुअल पूछा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया है। ये नॉमिनल डेटा है, ये ऑर्डिनल डेटा है, और ये इंटरवल है, और ये रेशियो। आई थिंक इससे इजीली मेरे को कुछ नहीं लगता है कि समझाने के लिए, और ये बेसिक है, आपने हर एक बार ये चीज देखा रहेगा। ओके, सो एज का हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एरर है, इट इज 10 to 20, 22, अच्छा सॉरी 1 for 10 to 20, दैट वाज करेक्ट। 1 stand for 10 to 20, 2 stand for 20 to 40। सो मैं जब भी बच्चों का ये करता हूँ तो दैट इज हाउ वी कलेक्ट द डेटा। नाउ एक और यहाँ पे सीख लेना आपको, पिवोट टेबल। ओके, पिवोट टेबल इंसर्ट में आके ये पिवोट टेबल का ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है एक्सेल का। वो सारे आपके नॉन मैट्रिक डेटा को ना मैट्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये पिवोट टेबल से ही मैंने लाया हुआ। अभी जैसे ये था मेरा नॉन मैट्रिक फॉर्म में, मैंने सिर्फ यही पूछा था मेल फीमेल। मुझे ये पता था ना कितने मेल हैं जो यूजी
किए हुए हैं और कितने फीमेल हैं जो पीजी किए हुए हैं। तो ये सारा चीज आपको कहाँ से मिल जाएगा? पिवोट टेबल से मिल जाएगा। वेरी इफेक्टिव टूल फॉर एनालाइजिंग योर नॉन मैट्रिक डेटा। और आपके बहुत सारे डेटा नॉन मैट्रिक फॉर्म में रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डेटा आपने लीकर लगाया मतलब नॉन मैट्रिक हो गया, आपने स्केल लगाया मतलब नॉन मैट्रिक। सिर्फ एक रेशियो डेटा ही होता है जो मैट्रिक डेटा होता है, बाकी सारे के सारे डेटा नॉन मैट्रिक डेटा ही है। सो आज जो मेरा बेसिक है, अगर मैट्रिक रहेगा तो कौन सा टेस्टिंग होगा? प्लीज आंसर मी। अगर मैट्रिक डेटा है तो हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? कौन सा टूल रहेगा? आई वॉन्ट योर आंसर प्लीज। अगर मैट्रिक, यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, सुपर। सो अगर मैट्रिक रहेगा तो हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे और उसमें हम लोग टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट दोनों देखेंगे। और अगर नॉन मैट्रिक रहेगा तो नॉन पैरामेट्रिक। एंड नॉन पैरामेट्रिक का गुरु कौन है? काई स्क्वायर। ओके, सो कोई भी डेटा, आई थिंक नाउ मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक पार्ट इज वेरी क्लियर। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। थैंक यू। कभी भी डेटा आपके पास आता है, अभी ये सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए गए, ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ उसका टेस्टिंग बताऊंगा। ओके, अभी टेस्टिंग के लिए अगर आपके पास आपके इसमें डेटा एनालिसिस टूल नहीं है, हमारे पास है। डेटा एनालिसिस टूल नहीं है तो आप इजीली यहाँ पे जो फाइल वाला कॉलम है, यहाँ पे जाने का, एक्सेल ऑप्शन में जाने का और यहाँ पे एड इन्स करने का। यहाँ पे जाओगे, आपको डेटा एनालिसिस टूल पैक है, इसको ओके करो, गो करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अगर किसी को और डिफिकल्टीज होगी, प्लीज मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे पूछ लेना। मेरे को यहाँ अभी ये सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेटा एनालिसिस कैसे आता है, कि मैं ये टूल्स को बार बार यूज करूंगा। बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई वी आर डूइंग। पहला तो जो क्वेश्चन हमको पूछा गया था, स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग 30 स्टूडेंट फॉर देयर IQ स्कोर and score is given like this. Okay, they are asking what is their descriptive analysis. उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? तो हमने क्या किया, बहुत सिंपली गए, डेटा एनालिसिस में गए, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ओके किया। ठीक है, वो इनपुट रेंज पूछेगा, मैंने रेंज दिया, ये 30 स्टूडेंट का स्कोर है। ओके, आउटपुट रेंज पूछ रहा है, आउटपुट रेंज मुझे इसी शीट में चाहिए ताकि आपको दिखे कि मेरा आंसर और आप जो आंसर निकालोगे वो सेम है। मैंने यही ले लिया और मैंने उसको ओके कर दिया। सॉरी, आई थिंक ये इनपुट रेंज ले रहा है, सिर्फ डेटा लेना है आपको। ठीक, आउटपुट रेंज हियर, यस, समरी स्टैटिस्टिक्स। आउटपुट रेंज दिया हुआ है, ओके के आ गया, यही आंसर है अपना। कभी भी कोई भी एनालिसिस करते हो, ये बेसिक आना ही चाहिए, और आप नहीं भी मांगोगे तो भी SPSS आपको देगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन। ये भी क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सब क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको लिखना ही पड़ेगा कि आपके डेटा का मीन कितना था, आपके डेटा का स्टैंडर्ड यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या था, आपके डेटा का मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कितना था, मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मिनिमम वैल्यू क्या था, रेंज कितना था, कितने आपने सैंपल्स लिए थे। दीज आर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं भी पूछेगा तो भी आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपके जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो डालना ही चाहिए। ओके, बिकॉज ये सारा चीज बाद में रिपीट होता है। आप अगर टी टेस्ट भी लेंगे तो भी वो मीन का वैल्यू देता है, तो भी वो स्टैंडर्ड डिविएशन देता है। अगर आप अनोवा डालेंगे तो भी मीन का वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू देगा। तो यू कैन क्रॉस चेक कि हाँ भाई मेरा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये है और मेरा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन ये है, यानी आगे का जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। रेस्ट ऑल आई हैव गिवन यू टू प्रैक्टिस। ओके, हियर ऑल्सो वंस अगेन एज इट इज बिगनिंग। ओके, हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ढूंढना है। तो हमने क्या किया, डेटा एनालिसिस में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोला उसको, ओके किया, डेटा रेंज लिया, दिस इज फॉर क्वेश्चन 2। डेटा रेंज मिल गया मुझे। ओके, आउटपुट रेंज चाहिए मुझे। आई डोंट वांट आउटपुट ओवर देयर, आई वांट आउटपुट ओवर हियर so that you can compare my answer and summary statistics। ओके करेंगे। यूजी पीजी पीएचडी कोई भी कर सकता है, कौन सा रॉकेट साइंस है। ओके, so this was regarding descriptive। now let us go for t test। okay, now there are two things, इधर आप डेटा से जाओ या फिर देर इज अ ऑप्शन इन फॉर्मूलाज। यहाँ भी मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिक्स जाओगे ना, यहाँ भी सारे ऑप्शन है, यहाँ से भी जा सकते हो। बट मेरे को वो थोड़ा हैंडी नहीं लगता है, इसके लिए मैं डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज करता हूँ। यहाँ मैंने उससे समझाया है और दिस थ्रू डेटा एनालिसिस। अभी डेटा एनालिसिस टूल पैक में जब भी आप जाओगे आपको ऑलवेज मिलेगा 2 सैंपल, whereas we have only 1 सैंपल। तो हम लोग 1 टी टेस्ट कैसे करेंगे सर? हमारा डेटा भी मेट्रिक है और मेजॉरिटी ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट यू कैन इजीली डू थ्रू एक्सेल। सर हम 1 सैंपल टी टेस्ट कैसे करें, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक्सेल को भी फूल बना रहे हैं। ओके, सो इन दैट केस विल क्रिएट डमी and we'll give the value as 0। We'll create dummy and we'll give the value as 0 and we'll apply this test। Now the question was, which has given to us, बोला है the average height of a male of a locality is given so and so, and it is reasonable believe that average height is greater than 66। okay, so अगर इसमें क्या कर दिया उसने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 1 टेल वैल्यू देखेंगे। अगर वो देता था 66 के ऊपर नीचे दोनों बाजू हम देख सकते थे, देन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ 2 टेल पे। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो 1 टेल का वैल्यू हमने दिया। आई होप दिस क्लियर, इट इज थिंग्स आर क्लियर कि कब हमको 1 टेल पी वैल्यू देखना है, कब हमें 2 टेल पी वैल्यू देखना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में हमने सब 2 टेल पे ही लिया है। ओके, सो दिस इज सिंगल कॉलम। हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस पे जाएंगे और जैसा हमने बताया डिस्क्रिप्टिव का आपने देख लिया और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नाउ वी विल गो टू यूज द टी टेस्ट। ओके, इन टी टेस्ट देयर आर 3 ऑप्शन। ओके, रादर जेड टेस्ट ऑल्सो। जेड टेस्ट में बताऊंगा, जब आपके पास वैरिएंस है तो आप जेड टेस्ट यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज दिस बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। इसलिए मैंने जब भी आपको टेबल बताया, मैंने टी टेस्ट उसके नीचे जेड टेस्ट, टी टेस्ट जेड टेस्ट लिखा है, दोनों का मतलब एक ही। ओके, पेयर टी टेस्ट हम बताएंगे कब यूज हो रहा है। अभी मैं ले रहा हूँ 2 सैंपल अनइक्वल वैरिएंस। अनइक्वल मतलब क्या, यहाँ
देखो मेरे दो डेटा है, आगे मैं दिखाऊंगा जहां पे इजीली फिगर ले लिया। ओके, हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ था 66 ले लिया। यहाँ पे लेबल्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल में जो एसपीएसएस में नहीं है। पहला कॉलम हमको लेबल वाला है, उसमें हम एज लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, एक्सपेंडिचर लिखते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो हमारा डेटा जब ये आएगा ना, वो पहला कॉलम को इग्नोर करेगा एंड सेकेंड कॉलम से डेटा उठाएगा। तो बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये यूज करने को। आउटपुट रेंज मेरे को इसी कॉलम इसी शीट पे चाहिए, ठीक है। मेरे को आउटपुट यही चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सको, सर आपका आंसर और हमारा आंसर सेम आ रहा है। ओके, ओके कर दिया, आप देखो सेम वैल्यू आया। मीन, वरांस स्टैंडर्ड, तो आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गया, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, मतलब कितने आपके सैंपल थे। हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस, सॉरी मैंने यहाँ पे एक एरर किया, मैंने 66 लिया है, सॉरी मेरे को 64 लेना। अदरवाइज थोड़ा आंसर में आपको डिफरेंस आएगा, तो आई नीड टू टेक 64, one change, perfect, then it will remain same. Okay, डिग्री ऑफ आ गया, स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑफ टी आ गया, वन टेल वैल्यू आ गया। अभी मैंने वन टेल का आपको बताया था क्यों। जब आप हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो तो नेगेटिव हाइपोथेसिस आप पहले ही फ्रेम कर लो ऐसे। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अज्यूम मीन एंड मीन ऑफ रैंडम सैंपल। ओके, बिकॉज इट इज वन सैंपल टी टेस्ट। ये मैंने चेंज कर दिया, टू सैंपल को वन सैंपल कर दो ना, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अभी ये एवरेज मैंने डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला से निकाला, यानी मेरा सारा डेटा आउटपुट सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। निशिकांत सर चार्ट में देख लीजिए ना, P इज इक्वल टू 0.03 जो लिखा है वो जरा चेक कर लो ना जरा सर। हाँ लिखा है ना सर, P का वैल्यू 0.03 है ना सर, यहाँ पे वही लिखा है मैंने। ओके, नाउ व्हेन वी आर राइटिंग, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको सीखने के लिए। व्हेन वी राइट, वी जस्ट सिंपली टेक and we write the answer whether to be accepted or to be rejected, etc etc. Okay, but honestly speaking आप डायरेक्ट मत लिखा करो, you have to write when your assumed mean was this, variance was this, your number of respondent is this, your hypothesized mean is this, degree of freedom is 9, T test ka value is 2, then your P is 1 tel, and then only we have rejected this null hypothesis and we have taken alternative hypothesis. This I have found lacking in majority of the research. Okay, so it's very important. ये हम लोग डायरेक्ट लिख देते, पी का वैल्यू 0.05 से लेस है, रिजेक्ट कर दो। अरे क्यों रिजेक्ट करो भाई, आप दिखाओ कि आपका मीन का वैल्यू ये था, वैरिएंस ये था। कब आया वो, जब मीन इतना है, वैरिएंस इतना है, सैंपल इतना है, तो ये वैल्यू है। अगर ये चेंज होगा तो ये भी वैल्यू चेंज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ writing your conclusion or analytical part. So this is missing, which I found in almost all the conclusion and analysis of data. I think one sample t-test is very clear, जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल रहेगा और सारे मेट्रिक डेटा रहेंगे। ओके, आप वो सारे मेट्रिक डेटा को सिर्फ डेटा एनालिसिस पे लेके जाओ एंड यहाँ पे एक डमी फिलअप करो एंड देन टेक द आउटपुट। ये दिखाएगा टू सैंपल बट एक्चुअली इट इज वन सैंपल। डमी का कोई इंपैक्ट नहीं है। एंड मैं बार बार बोलता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन एवरेज, मीन, मीडियन, मोड में कोई फर्क नहीं है। दिस ऑल आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस।
Okay. So one sample t-test is done. Now we'll be going for few questions I have given you for you to practice. Okay. 2 and 3 questions मैंने आपको वन सैंपल का ही दिया हुआ है. ओके. एंड यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था इट इज बियॉन्ड एंड लेस ऑल्सो, तो हमने 2 टेल लिया है. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था. 66 से ग्रेटर उनका एक्सपेक्टेशन था. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन वन टेस्ट. और टी टेस्ट और अनपेयर्ड with equal variance and unequal variance. This is the difference between equal and unequal variance. यहाँ पे देखो ये सारे रिस्पोंडेंट फिक्स नंबर है यानी यहाँ पे जितने भी रिस्पोंडेंट है 8 and 8 है. ओके. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे रिस्पोंडेंट 15 and 12. तो जब ये अनइक्वल रिस्पोंडेंट होगा तो हम लोग क्या लेंगे? अनइक्वल वेरिएंस. और जब इक्वल रहेगा देन विल टेक इक्वल वेरिएंस. यहाँ पे भी मैंने आपको एक बार सिखाया है हाउ यू शुड राइट योर इंटरप्रिटेशन. हम लोग 90% 95% टाइम हमने देखा है कि 5 से देखते हैं और वी आर रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट लिख देते. बहुत सारे जन तो फेल टू रिजेक्ट भी नहीं लिखते, डायरेक्ट एक्सेप्ट लिख देते, विच इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. आपको लिखना पड़ेगा कि हम कब इसको कर रहे हैं, कब कौन सा पी का वैल्यू ले रहे हैं. जब मेरा मीन इतना था, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना था, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इतना था, मेरा सैंपल इतना था, हाइपोथेसिस वैल्यू इतना था, तो ये पी वैल्यू था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ व्हेन देयर आर टू सैंपल. ओके. अभी अनइक्वल वेरिएंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. हो सकता है. मैं 2 डिवीजन में पढ़ाता हूँ. एक डिवीजन में 135 स्टूडेंट है, दूसरे डिवीजन में 150 स्टूडेंट है, और मुझे बोला गया एवरेज निकालो, इसका रिजल्ट बराबर है कि नहीं, इस पे हम लोगों ने फोकस किया है कि नहीं. तो हम क्या बोलेंगे? भाई हम तो आगे रिसर्च कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा अनइक्वल है. ऐसा नहीं. कभी भी आप डेफिनेटली आपके रिसर्च को आगे प्रोसेस कर सकते हो, बट आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फॉर अनइक्वल वेरिएंस. ओके. And again, you have to go to data analysis. I hope now you have understood for equal and unequal variance. Equal में the variance will be physics, same, and unequal में variance will be unequal. Okay. And यहाँ पे हम लोग बार बार एवरेज निकाल के रख लेते थे ताकि हमको पता चलता था कि जो मेरा आउटपुट आया is similar what we were expecting. यानी ये डेटा अप्लाई करने से कोई भी डिफरेंस नहीं है. Okay. And when there are two, then always we will compare. हम लोग नेगेटिविटी जो लेते हैं ना, हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस विल बी 0. अभी मैं इसका एक टेस्टिंग करता हूं तो आपको समझ में आएगा. चलो हम इक्वल वेरिएंस कर लेते हैं. डेटा इक्वल वेरिएंस. ओके. वहां पे 2 रेंज पूछता था, यहाँ भी दोनों रेंज पूछेगा. लेवल्स डाल देंगे क्योंकि पहला वाला कॉलम लेवल है, पहला वाला रो लेवल है. हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस ऑलवेज 0 मैंने लिखा हुआ है. आउटपुट रेंज मुझे इसी पे चाहिए. दिया जो यहाँ था वही आ गया. तो जब भी मैं इसको एनालाइज करूंगा देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स वी विल टेक द पी वैल्यू टेल ओनली, बट व्हेन वी विल राइट वी शुड राइट लाइक दिस. वो पी वैल्यू कभी था जब भी मेरा मीन वाज 28, माय वेरिएंस वाज दिस, माय नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट वाज दिस, हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस वाज दिस, राइट. And then we will write no significant difference, right? Degree of freedom ये था. P statistical, क्योंकि ये सारा बेसिक जो है मैंने आपको बार बार बोला है, राइट. मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हर एक एनालिसिस में आएगा. चाहे एसपीएसएस से निकालो यही आउटपुट आएगा, चाहे स्टैट से निकालो, ईव्यू से निकालो,
राइट। कोई भी टूल से निकालोगे आपको बेसिक ये चीजें बार बार दी। तो व्हेन वी आर राइटिंग यू शुड see to it that you should write all other details, not only just p value ये है so we are rejecting or we accept. Right. Please don't do that. Okay, and it's not necessary we always keep the significant level 5%. We have to get the significant. जब भी मेडिकल साइंस आएगी, साइंस वगैरह के जो रिसर्च होते हैं, एग्रीकल्चर साइंस के रिसर्च होते हैं, वहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल 100% चलेगा। फिर भी 100% नहीं तो एटलीस्ट 99% कॉन्फिडेंस लेवल तो होना ही चाहिए। इसलिए सिग्निफिकेंट लेवल 1% का ही रहता है। So this is what we have to understand, and then you will say पेयर टी टेस्ट कभी लेते हैं जब भी सेम रिस्पोंडेंट, राइट। यहाँ पे रिस्पोंडेंट अलग अलग है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट सेम है, एंड वी आर कलेक्टिंग डेटा 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स। मेजॉरिटी ऑफ सीन अभी जैसे जो क्वारंटीन में आप देख रहे हो, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इसको हम लोग पेयर टी टेस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपका ना तो टी टेस्ट लगेगा, ना ही इक्वल वेरिएंस, ना ही अनइक्वल वेरिएंस। यहाँ पे आपको पेयर टी टेस्ट ही लगेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अभी वेट रिडक्शन का आपने अगर देखा रहेगा कहीं भी, जो यू नो पॉलिसी रहता है, हर एक बार हर एक वीक आपका वो वेट मेजर करते हैं, आपके बीपी को मेजर करते हैं। दैट इज व्हाट दे कीप द रिकॉर्ड फ्रॉम सेम रिस्पोंडेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। मेडिकल साइंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन प्योर साइंस में इट इज वेरी वेरी यूजफुल। हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो जाके चेक करता है व्हाट इज द रिस्पांस, व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द हाइट, एक्सेट्रा। So pair t test from the same respondent after certain time interval. When we are collecting the data, at that time we have to apply pair t test before and after, and then accordingly we have to create our hypothesis. You know, there was no significant difference before and after the training, and then we have to check whether the p value is less than 0.05 or it is more than 0.05. If it is less than 0.05, then definitely we have to reject, and accordingly we have to write. But यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसा जो general term है वैसा लिखा है, but while writing, once again I'm requesting you write अगर we are rejecting because my mean was this, my variance was this, my observation was this, my degree of freedom was this, my p stats value is this, then only my p value, which I have guided you your everywhere, जहाँ जहाँ भी मैंने आपको गाइड किया है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही लिखना है आप। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट ऑल पार्ट इज ओवर। आपने अगर आपके पास पीपीटी है, आप देखेंगे पेयर टी टेस्ट में 1 सैंपल टी टेस्ट था वो हमने कर लिया, 2 सैंपल टी टेस्ट था, इक्वल वेरिएंस अनइक्वल वेरिएंस वो हमने देख लिया, 2 सैंपल पेयर टी टेस्ट था वो हमने देख लिया। तो एवरीथिंग पैरामेट्रिक टेस्टिंग इज डन। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि सर जेड टेस्ट क्यों नहीं किया? कि पी और जेड में कोई फर्क नहीं है, जेड में आपको वेरिएंस पूछेगा, तो व्हेन द वेरिएंस इज नोन देन यू कैन अप्लाई Z. So can we proceed for non-parametric? अच्छा, पैरामेट्रिक में और 2 चीजें हैं। अच्छा, लेट मी फर्स्ट फिनिश द पोर्शन, देन अगर टाइम मिलेगा तो हायर वर्जन हम लोग देख सकते। नॉन पैरामेट्रिक में एज आई स्टेटेड टू यू, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द रिलेशनशिप। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रिलेशनल से टेस्टिंग करा, राइट, वेदर दे आर बिफोर, आफ्टर, कंपैरिजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay, so cross tab is row total and column total. Cross tab is always giving the relationship, the details of non-parametric. Okay, non-parametric data जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। Okay, जैसे मेरे को पता नहीं कि मेल कितनी
कितना है जो यूज है, फीमेल कितना है, तो मैंने पिवट टेबल से क्रिएट किया पर यहाँ मुझे पता चला इतने फीमेल है जो पीटी है। दिस इज रिलेशनशिप जो अभी तक हम लोग की टेस्ट में कर रहे थे। ओके, इसका प्रिडिक्शन हम लोग देखेंगे आगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट is known as chi-square. This is chi-square. Very simple, right? From the following data. अब ये जो डेटा था मुझे वैसा ही मिला था, ओके, ब्लू ग्रीन मेल फीमेल ऐसा था, उसको हमने नंबर्स में डाला। ये भी पिवट टेबल से बनाया है, यहाँ पे किस तरह के आपको पिवट टेबल मिलेगा, ठीक है, ये पिवट टेबल से आउटपुट आया है। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि मेल 40 है जिनको ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है, फीमेल 60 है जिनको ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। फिर अगेन लाइकवाइज मेल 25 ऐसे हैं जिनको रेड कलर का टी शर्ट अच्छा लग रहा है, फीमेल 25 है, 15 है। सो दिस इज रिलेशनशिप, और ये हमने किससे किया, क्रॉस टेबुलेशन से किया, नियरली क्रॉस टेबुलेशन। तो नॉन पैरामेट्रिक में क्रॉस टेबुलेशन इज रिलेशनशिप। अब इसको प्रिडिक्ट अगर करना है तो हमको chi स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तेरा फोन में इधर द chi स्क्वायर वेरी सिंपल, रो टोटल कॉलम टोटल मैंने बार बार बोला है आप, ओके। सो हियर we found the row total is 200, column total is 100. So how much it is? It is right. हमने row total divide by column total किया तो 50. इसका मतलब है 50%, 30%. Then this is actual data which I got. This is the expected data which I have created. तो अगर 100 है, इसका 50% कितना होगा? 50, 30, 20 like. फिर then chi square की वैल्यू वेरी सिंपल, आप जाएंगे, आप इक्वल टू chi टेस्ट अप्लाई करो, ठीक है। दे विल आस्क यू फॉर द एक्चुअल रेंज, एक्चुअल रेंज का डेटा लेना, यहाँ पे लेबल वाला ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज डोंट टेक एंटायर थिंग्स, दैट इज ओनली फॉर पैरामेट्रिक टेस्टिंग, जहाँ पे आप टी टेस्ट कर रहे थे, टी टेस्ट विथ इक्वल वेरिएंस कर रहे थे, टी टेस्ट विथ अनइक्वल वेरिएंस कर रहे थे, वो सब के लिए था। एंड एक्सपेक्टेड रेंज भी हमारे पास है, दिस इज माय एक्सपेक्टेड, कर दिया, मेरा वैल्यू आ गया पूरा। नाउ विद दिस वी कैन check the p value chi test ka, and then accordingly we can write our comments whether to accept or to reject. This is how we are, whether it is two variable, more variables, multi variables. Okay. So try to understand. My basic data was in non-metric form. I have transformed them through pivot table in metric, and then I have applied chi test. Yes. Okay, and majority of the time the value is like this. Okay, ऐसा वैल्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया, I wanted to increase also, majority of the time मेरे बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने लिया आपको सिखाने के लिए टाइप टेस्ट, ठीक है। एक्चुअल रेंज, मेरा एक्चुअल रेंज ये है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंज, मेरा एक्सपेक्टेड रेंज ये है, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वैल्यू क्या है, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये लेस देन 0 का बहुत ही मिनिमल, ओके। अभी बोलोगे सर इसको कैसे लेने के लिए, तो सेलेक्ट द सेल, मैंने लिखा हुआ है, गो टू फॉर्मेट द सेल, सेलेक्ट द सेल, फॉर्मेट द सेल, ठीक है। यहाँ पे नंबर, जनरल से जाके नंबर में डाल दो, ओके कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा, और फिर वो पॉइंट हटाते जाओगे तो एक्चुअली आगे जाके पता चलेगा कितने जीरो के बाद आपका, आई थिंक that is also very clearly explained
ओवर ईयर। तो जो जो कॉम्प्लिसिटी मेरे बच्चों को आई थी वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर के आपको दे दिया। So it is 2 variable, 3 variable, univariate. Accordingly, you can create your relational, comparison and output and predictive output. When there are both dependent, independent, metric, non-metric, सब रहेगा. In that case, we have to apply ANOVA. Okay. In such cases, again you have to go to data analysis toolbar. और वहां बहुत क्लियरली अनोवा का ऑप्शन है. आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही है सिंगल फैक्टर अनोवा, 2 फैक्टर रिप्लिकेशन. तो अभी जब बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, सो देयर कुड बी चांसेस अमंग्स द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, ऐसे भी वेरिएबिलिटी हो सकती है. यहाँ भी वेरिएशन हो सकता है. So when there is multivariate analysis, we have to apply ANOVA. Then ANOVA 1 way, 2 way, N way, ANCOVA, MANCOVA, बहुत सारा अलग अलग ऑप्शंस है. Go in deeper, and it's very simple to get the ANOVA. Go to data analysis. Go to single factor. Take the values. Of course, इसमें row ले सकते. Labels in first group. Alpha of course 5. Output range मुझे यहीं लेनी है. अच्छा, मैं सेकेंड वाला का करता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे आउटपुट लेने को इजी रहेगा. देयर इज नो डिफरेंस. आप प्रैक्टिस करो, सेम आएगा. आ गया. Okay, same value what I had. Now this is the relationship between the group, within the group. यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ. Okay, you will understand. Here it is very clearly given. This is mean square. How we got the value of mean of square? I got the value of sum of square between the groups. And ये बहुत simple analysis है. Again, sum ये है, average ये है. मैं बोला ना, basic statistics आपको always देगा, चाहे आप कोई भी tools लगाओगे. That is why I was very keen from the beginning. Measure tendency, measurement of dispersion, measurement of central tendency, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मीन मीडियन मोड में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको. आप तो देखो, you'll find almost the values 1 or 2 here and there different. Why? Because all the values give a measurement of central tendency only. Okay, they are averages only. So मीन ऑफ स्क्वायर कैसे हमने निकाला? यहाँ पे जो वैल्यू आया है बहुत सिंपल है. हमने सम ऑफ स्क्वायर लिया, ये सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू दिया है. ओके, एंड हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया. आपको मीन ऑफ स्क्वायर है. इसी को हम लोग एफ टेस्ट बोलते हैं. तो आपको मैंने टी टेस्ट सिखाया, आपको मैंने जी टेस्ट सिखाया, जिसको आपको मैंने काई स्क्वायर टेस्ट सिखाया. अभी ये लास्ट था एफ टेस्ट. ये सारे टेस्टिंग आपकी खत्म हो गई. और अभी जो मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा, दैट विल बी प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जो हम लोग रिग्रेशन में यूज करते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. सो आई थिंक मैं बाय 7:30 एवरीथिंग कवर कर लूंगा. ओके, सो ये सम ऑफ स्क्वायर कहाँ से आया? यहाँ से आया सम ऑफ स्क्वायर. डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आया? यहाँ आया. और उसी को आप करोगे तो आपको मीन स्क्वायर का वैल्यू आएगा. सम ऑफ स्क्वायर कितना था? 167 पॉइंट दिस. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. दिस इज माय value of mean square. Okay, this is between the group, this is within the group. Okay, but मुझे ये मेरी f value है. f कैसे आया? mean square of between the group
बाय मीन स्क्वायर ऑफ, कोई अगर इसलिए मैंने ये सारी चीज दी है। ओके, मीन कैसे आता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी माइनस मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रूट करोगे तो वेरिएंस। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है और यही सारे आउटपुट दिए हुए हैं आप। ओके, बट यहाँ पे भी मेरा टेस्टिंग किस पे रहेगा, ये वैल्यू पे ही रहेगा कि मैं उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूं। बट मैं जब भी लिखूंगा आई हैव टू राइट एवरीथिंग, आई हैव टू राइट देयर sums, their average, degree of freedom, sum of square, their mean square, and then only their p-value is this, and therefore I am rejecting this hypothesis as I have discussed earlier. So whether it is single factor with multiple variables, right, or uh, um, there is a other option also for ANOVA. वैसे वैसे आप टू रिप्लिकेशन, विदाउट रिप्लिकेशन, अब अगर वापस करना चाहते हो तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, एंड दिस ऑल वी हैव केप्ट इट फॉर यू टू प्रैक्टिस, और आंसर भी मैंने आपको दे रखा है। लास्ट विच आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन आई टोल्ड यू देयर शुड बी टू वेरिएबल्स एंड दोनों मेट्रिक डेटा होना। अब हम लोग रिलेशनशिप नहीं कर रहे, हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे जा रहे हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज द क्रक्स ऑफ रिसर्च, बट हमने 90% इंडिया में है सोशल साइंस रिसर्च में सिर्फ रिलेशनशिप ही बताते, they never go to predictive. Predictive analysis is very very important. How you can do the predictive analysis? Like suppose ये say expenditure, और हम लोग सबको पता है, right? We all know this is the regression equation, y is equal to a plus bx. अब मैं इसको बहुत simplify way में आपको सिखाऊंगा, and then how you can get it through Excel also, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? So हमने expenditure लिया था, हमने sales लिया था, right? हमने यहाँ पे माना है expenditure is independent variable and sales is dependent on expenditure, कि हम जितना ज्यादा expenditure करेंगे उतना sales मेरा बढ़ेगा। ओके, तो दैट इज वाई मैंने सेल्स को y लिया और एक्सपेंडिचर को x लिया। अब मेरे को कभी भी रिग्रेशन अप्लाई, और इसमें क्वेश्चन में भी पूछा है कि अगर 72 lakhs एक्सपेंडिचर होगा तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सेल्स, और ये डायरेक्ट आया है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वैल्यू आई गॉट इट डायरेक्टली, आई विल शो यू हाउ वी गॉट। सो हमने क्या किया, हमने इसका स्लोप एंड उसका इंटरसेप्ट ढूंढ लिया, राइट? ए इज नोन एज इंटरसेप्ट वेयर द एक्स एक्सिस यानी दोनों वेरिएबल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एंड बी इज द स्लोप। हाउ टू गेट द दिस टू वैल्यू सर? वेरी सिंपल, okay, and before applying correlation regression we need to check their correlation value. Okay, correlation value always lying between 0 to 1, many a times it is negative also. कोरिलेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया सेल्स एंड प्रॉफिट, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, एज एंड हाइट। ओके, बट इम्यूनिटी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इम्यूनिटी आपकी कम होती जाएगी। सो देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन आल्सो, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन आल्सो। द कोरिलेशन विल बी हाई आल्सो, द कोरिलेशन विल बी लो आल्सो। बट अगर ये 0.9 है दैट मींस वेरी पॉजिटिव कोरिलेशन, बहुत अच्छा है, इस पे हम लोग रिग्रेशन लगा सकते हैं। ओके, कैसे लगाया? तो सर ये ए बी कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, ए का वैल्यू इंटरसेप्ट है, हमने यहाँ पे डाला इक्वल टू इंटरसेप्ट। ओके, वो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू है मेरे पास, डाल दिया। वो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू है मेरे पास, मैंने डाल दिया, आ गया वही वैल्यू, आ गया इंटरसेप्ट का वैल्यू, मैंने इक्वेशन रेडी कर लिया। ओके, सिमिलरली स्लोप इक्वल टू स्लोप, right? What is the value of y? ले लिया। What is the value of x? मैंने लिख लिया, एंटर मार, आ गया, मेरा इंटरसेप्ट रेडी है, स्लोप रेडी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का इक्वेशन है। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मेरा 72 पे? देखो देखो, ओके, इक्वल टू, राइट, मेरा स्लोप इंटरसेप्ट वैल्यू ये है, ओके, प्लस
स्लोप का वैल्यू ये है इनटू ओके एक्स का वैल्यू क्या था 72 आ गया वैल्यू. So this is known as predictive analysis. This is known as अभी इसको हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं एक्सेल से भी निकाल सकते हैं. ये जो हमने आपको कोरिलेशन डायरेक्ट बताया ना मैंने बोला ना यहाँ भी एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ से भी वैल्यू आपकी आ सकती है. आप डेटा एनालिसिस में जाइए कोरिलेशन दिया हुआ है ओके कीजिए रेंज दे दीजिए अगर लेबल्स चाहिए तो लेबल भी दे दो ला गया आउटपुट रेंज मेरे को आउटपुट यहीं चाहिए बेटा यहाँ ओके मार दो देखो वही है सेम वैल्यू आपका देयर इज नो डिफरेंस जो वैल्यू यहाँ था वही वैल्यू ये हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओके सेम वैल्यू जो एंड इन ग्रुप एंड विद इन द ग्रुप इसी तरह यहाँ पे आप रिग्रेशन निकालोगे तो आ जाएगा एंड दिस इज ए इंटरसेप्ट ए का वैल्यू यहाँ से आएगा और बी का वैल्यू यहाँ से आएगा वो लगा दो आप इजीली आप यू नो अप्लाई कर सकते हो. देखो यहाँ भी रिग्रेशन है डेटा एनालिसिस में जाओगे रिग्रेशन डाल दो ये सारी चीजें आ जाएगी ओके वापस पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ वाई ले लिया मैंने व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स ले लिया मैंने ओके लेबल्स है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 आउटपुट रेंज कहाँ चाहिए मुझे यहीं चाहिए सर ताकि आप कंपेयर कर सको आ गया सब वैल्यू जो ऊपर है सेम वैल्यू अभी यहाँ से भी डाल सकते हैं आप यहाँ से ये मैं मतलब आपको मैंने दोनों ऑप्शन से बता दिया दिस इज नोन एज प्रिडिक्टिव एनालिसिस ओके so there are two types of research one is comparative other is predictive and the very important analysis is predictive one. If you'll go to the industries they will always expect you to follow this predictive analysis that is where regression is very very important to understand very very important to understand कि हम predict कर सकते हैं अभी आप you know being a Baba Bengali is the same ANOVA which we got F values same value आया okay? Between the group within the group सेम चीज जो हम लोगों ने प्रीवियस टेबल में देखा वही चीज आया हम लोग p वैल्यू लेंगे विल टेक दिस एंड देन वी विल इंटरप्रेट द डेटा so from my end thanks to god before time I have completed my entire analysis correlation or regression also I have completed and that was my challenge and I'm thankful to you all now you can ask any type of question excellent user thank you ma'am thank you Pooja ma'am thank you very much मैम ये बहुत साल से प्रैक्टिस करते करते आया है इट्स नॉट रिक्वायर्ड वी नीड नॉट हैव टू यूज SPSS अभी जैसे मैं और ख्याति मैम अभी फैक्टर एनालिसिस पे काम कर रहे हैं वहां पे एक्सेल काम नहीं करता तो हमें SPSS की जरूरत होती है बट बेसिक जितनी भी रिसर्च है वो आपको एक्सेल आराम से करके देगा मैम आराम से करके देगा पहले ये वन फैक्टर नहीं आता था फिर भी हम लोगों ने वन सैंपल वाला भी कर लिया ऐसे धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं पहले हम लोग नॉन पैरामेट्रिक में हमको क्रॉस टेबुलेशन समझ में ही नहीं आता था एक्सेल हेल्प ही नहीं करता था बट जब से पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया नाउ आई मीन स्काई इज द लिमिट
पिवॉट फटाफट फटाफट अपना काम करके दे देता है, हमारा नॉन मैट्रिक डेटा को भी मेरे को रिलेशनशिप फटाफट दे देता है, देन वी कैन इजीली अप्लाई काइटेस्ट। अरे थैंक यू बॉस, थैंक यू एवरीवन। I would request my chairman, from my end it is over, sir, well within time limit. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Now I request Dr. Kuldeep Sharma to offer the vote of thanks. Kuldeep, can you listen me? Yeah, sir. Yeah. Please proceed. Respected Arvind Lohar sir. आवाज बहुत कम है, जरा थोड़ा माइक के पास आ। Respected प्यारा समाज। हेलो। अरे आवाज बहुत कम है बाबा तेरा, हाँ सुनाई दे रहा है बहुत सर, बारीक आवाज है। सुनाई दे रहा है सर, दे रहा है, बोल दीजिए। Respected Dr. Arvind Lohar sir, Chairman Indian Accounting Association Thana Chapter. Dr. Nishikant Jha, Secretary Indian Accounting Association Thana Chapter. Dr. Santosh Sonawne, Board of Studies Chairman, Board of Studies member. Pooja ma'am and other participants. It is really indeed a very nice lecture, and Nishikant sir has done in a beautiful manner. He explained entire concept of parametric and non-parametric in just a 2-hour session, which is quite difficult job. And the most important thing, explaining everything with the help of Excel. That is a wonderful thing. I still remember in my PhD thesis writing, I've tested all my hypotheses with the help of Excel, but right now I've forgotten everything. But again, after listening the entire session of Nishikant, I'm recollecting most of the things. So thank you, Nishikant, for giving such a wonderful knowledge. Even sometimes we also feel. Hello. So, I'm audible. Yes. Yes, yes. So Yes, sir, you are audible. So it is really a wonderful lecture, sir. Nishikant sir, I request to keep this kind of session so that all the participants, including we, also take advantage of it. And on behalf of entire Indian Accounting Association chapter, I express my vote of thanks and give thanks from bottom of my heart for your wonderful lecture. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. सर बोला ना उसने, Okay. आप बोलने नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं नहीं, निशिकांत आवाज बहुत excellent कम आ है। रही है, वो क्या माइक निशिकांत से डरता एक्सीलेंट है, बहुत है। आपको स्टडी मटेरियल्स भी बहुत काफी अच्छे, मेहनत- यूजफुल है, बहुत एक्सीलेंट है। मैंने आप Really? लोगों को एक और एक लिंक भी भेजा है जिसमें हाउ द अच्छा, टाइटल टू हाइपोथेसिस, टाइटल टू ऑब्जेक्टिव टू हाइपोथेसिस टू क्वेश्चन, कौन अच्छा, सा क्वेश्चन हाँ, कौन सा हाइपोथेसिस, वो सारी भी चीजें मैंने दे रखी है। मैं बहुत Very दिन nice, से इस very पे nice. प्रिपेयर कर रहा था, और जब इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे कुलदीप सर ने इतना बोला, मैं उनको गुरु मानता हूँ सच में, रियली बहुत। अरविंद द्वार जी है ना, जब तक आप अरविंद द्वार जी है तब तक ये वो चलती तो रहेगा। सबके गुरुवर है, वो गुरु के गुरु है सर। सही है। उनके बारे में तो बोलना हमारे लिए इतना ही है, वो बहुत बड़े आदमी है। बट मैं भी कुलदीप से अरे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं ख्याति से सीखता हूँ, अभी भी अरे सीख मैं रहा तो इन लोगों से सीख रहा हूँ। हूँ। कुछ भी मत बोलो सर आप प्लीज। सर मैं एक हाँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। Okay, कुलदीप जी सुन attendance रहे हैं link is already forwarded, so please give your attendance, okay? और कुलदीप सर कल कुछ के सर्टिफिकेट भी थोड़ी देर में मिल जाएंगे और आपको हम Yes, ग्रुप yes, में yes. डाल देंगे। सर कुलदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। Sir, use of Excel is a wonderful thing for two important reasons. Number one, Excel is freely available. Just you have to put you can able to do it. There's in you require file can so this is a group which known as the use of Excel, and definitely I will learn more work on Excel so that even I also learn a lot. Nishikant sir, I should say you have shown part me also to use Excel once again.
सर मेरे लिए इससे बड़ा आज के फीडबैक में कुछ नहीं है जब कुलदीप सर बोल रहे हैं कि कुलदीप सर का एक ही प्रॉब्लम है कि वो नेबर के घर पे बैठे हैं, इसके लिए उनका आवाज थोड़ा सा कट कट होके आता है, बहुत कट हो रहे हैं। हाँ बरोबर कि उसके घर पे उसकी आवाज न जाए। अपने घर पे बैठा हूँ सर, अब मैं आज अपने घर पे बैठा हूँ। हाँ अच्छा, इसीलिए आपके घर पे तुम्हारी आज बैठे हैं? आवाज कम है। अब है, हाँ, कल तो बहुत जोर से आ हाँ रही थी। हाँ बरोबर, कल तुम्हारी आवाज बहुत सही आ रही थी। सर कल मैंने ना रिस्क लेना नहीं चाहा, कल मैंने कहा कि ना आवाज कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो यस्टरडे आई हैव टू डिलीवर लेक्चर। हम्म। लेकिन घर वाले को पता चल रहा है ना, लेक्चर ही ले रहे हैं कि आराम कर रहे हैं, तो इसी के लिए जोर से बोल रहे थे कल, ताकि घर तक आवाज वाले पहुंच बाजू जाए। में बैठे थे, घर वाले अरे बाजू में बिल्कुल। बैठे चेक करते थे वो बरोबर अरे अरे गुरुजी, बच्चा बेचारा एकदम नया है, अभी उसको ज्यादा अपन नहीं छेड़ेंगे, है कि नहीं? ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा निशिकांत, एंड यू डिड योर बेस्ट। और जनरली इस तरह के सेशन बार बार मुंबई में नहीं होते हैं। आपने बहुत ही नटशेल में लोगों को पूरा का पूरा सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके लिए इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ठाकुर कॉलेज एंड IY कॉलेज इज आपके आभारी है। ठीक है जी, ओके, शैल वी कंक्लूड? यस यस सर। सर। ओके तो ओके, चलो तीन लोगों की बाय। तरफ से आभारी दे रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी दीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को ही ज्यादा सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।